Greetings, my affectionate children. In this video, we will learn what's the meaning of subject, verb, and agreement, where you have to use it with the help of rules and examples. And I'm much sure that it will clear to you too much. If you want to see rest of the videos, first subscribe the channel, go to the playlist. You can select any desired video of the grammar topic, writing section, otherwise literature part. So let's begin the video of this subject, verb, and agreement. The very first you should come to know what do you mean by subject, what do you mean by verb, and what is the meaning of agreement here. So subject means a doer. Who is the doer? Means he, she, it, or any person, name of anything. Means a noun or pronoun is the doer. Means what is subject? Subject is the doer. Doer means here any pronoun or any noun here. Means किसी person का name, place का name, thing का name जो कि doer है. Means करने वाला. Okay, and that can be pronoun also, like he करने वाला है, she करने वाली है, ठीक है, they करने वाले हैं, we जो है वो करने वाला. means doer. You have to come to know what is subject. Subject means doer, कि जो काम को करने वाला है. Next is verb. Verb means action. Whatever the action will be taken here, whatever the step will be taken here, means जो action होता है, जो काम होता है, that is known as verb here. And agreement means subject और verb के बीच में कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ एग्री होती है, एग्रीमेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू कम टू नो हियर कि जैसे सब्जेक्ट हमारा है ही है, शी है, इट है, या किसी का नेम है, पर्सन, प्लेस का, किसी कोई भी नेम है, तो उसके साथ हमारी वर्ब क्या लगेगी? इज, एम, आर लगेगा, वॉज वर लगेगा, हैज, हैव लगेगा. मीन्स कौन सी वर्ब जो है उसके साथ एग्री होगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स. So the very first come to know example, what is there? Like the dog is playing with his ball. Dog is playing with his ball. So what is the dog? The dog is a subject here and is playing is your verb. So here ये जो dog है, ये जो subject है वो agree होता है कौन सी verb पे? Is playing वाली verb के साथ वो agree होता है. Next is here the dogs are playing with their ball. अब अगर यहाँ पर the dogs आ जाता है, ठीक है, plural आ गया, means plural ही यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब आएगी. प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आ गई यहाँ पर. सिंगुलर अगर था आपका तो सिंगुलर ही वर्ब आई यहाँ पर. जैसे सिंगुलर है डॉग तो इज भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर आ गया. सिंगुलर प्लेन के साथ आ गया. इफ दिस इज द डॉग्स मींस प्लूरल इज गिवन, देन प्लूरल वर्ब विल आल्सो कम देयर. सो व्हाट इज गिवन देयर? सेम इज द डॉग्स आर देयर subject and are playing is your plural form of verb. Next, use a singular verb. You have to use a singular verb with the news, information, knowledge, jewelry, hair, luggage, etc. Means if these words are given to you in any of the sentence, you have to use a singular verb. Means like news is, news has, news was. Like this, we have to use a singular verb with this. But if piece of word is added, like piece of information, piece of news, piece of knowledge, piece of hair, piece of luggage, anything means anywhere where the piece of will come. जहां पे भी piece of means लगता है, जहां पे भी लगता है जिस भी word के सामने, whatever the word is given here, with that you have to use a plural verb. So what's the difference? Let's clear it with the help of example. Piece of information were brought by Ranveer. Piece of information is given, that's why verb will come here, or are will come here, or have will come here. Okay, according to the sentence, whatever is the sense, but here the plural verb will come. Like plural is verb, verb, have, or are, according to the tense here, right? Piece of information is added here, that's why. Next is only information is here, then is will come. Information is given to me. Information is given to me. Piece of information are given to me. Piece of information are given to me, right? This news is spread all over. This news is spread all over. So is आ गया यहाँ पर. This piece of news are spread all over. Her hair is white. देखो hair के साथ हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है that what will come with hair. So with hair, just only hair. अगर hair दिया हुआ only तो उसके साथ just आपको only singular verb ही लगाने हैं. अगर यहाँ पर piece of, देखिए hair के साथ piece of नहीं आता वैसे, but अगर piece of किसी word के साथ add हो जाता, then you have to use the plural verb. So what will come? Her hair is white. Her hair is black. Her hair is gray. Anything you can use here. The next rule with collective
noun. Collective means like a set of, a bunch of, a team of, a class of, a group of, a band of, a galaxy of. मीन्स इस तरह से अगर कोई ग्रुप गिवन है, कलेक्टिव नाउन है, मीन्स एक कलेक्शन गिवन है यहाँ पे, तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है. लाइक अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सिलेक्टेड, अ garland of flowers is brought for bridegroom, a bunch of keys was lost somewhere. So means this is given collective noun. देखो ये जो keys है, keys किस में दी गई, bunch में दी गई, मीन्स ये collective noun हो गया की का. फ्लावर किस में दिया गया, garland of flowers, तो फ्लावर्स यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर ग्रुप में हुए. ठीक है, ये एक तरह से आपका बंच में आ गया. टीम ऑफ प्लेयर्स भी आपका मोर देन वन में आ गया, ग्रुप के अंदर कलेक्टिव कलेक्शन में आ गया. जब भी ये कलेक्शन में आते हैं, कलेक्शन में आते ही नाउन का, जैसे प्लेयर्स है, फ्लावर्स है, कीज है, ये किस में आ गए, कलेक्टिव नाउन में. और कलेक्टिव नाउन आते ही आपकी जो वर्ब है दैट विल बी देयर सिंगुलर दे, लाइक हैज, इज और वाज. Next is their next rule. The next rule is again the most of the students will confuse what to use in trousers, what to use in scissors, what to use in spectacles and tongs. Why I'm saying like this there, because all of these things are having two piece, like ट्राउजर के टू पीस होते हैं, मीन्स ट्राउजर की जैसे टू लेग्स होती हैं, तो ये टू पीस में डिवाइड होता है. सीजर्स के भी टू पीस होते हैं, टू पीस से हम इसको कट करते हैं. स्पेक्टेकल के भी टू होते हैं. टोंग्स जैसे चिमटा होता है, उसके भी टू पीसेस हमारे होते हैं. तो जिसके भी टू होते हैं उसके साथ हमें प्लूरल को यूज करना है. लाइक एग्जांपल इज देयर, हिज ट्राउजर्स हैव टोन. ऐसे तो ट्राउजर्स क्या, देखो हम हमेशा कहते हैं उसका ट्राउजर फट गया, तो ये ट्राउजर रॉन्ग वर्ड है, हमेशा ट्राउजर्स बोला जाता है, क्योंकि ट्राउजर तो होता है एक लेग. क्या कभी भी एक लेग में हम ट्राउजर को डालते नहीं, हम हमेशा टू लेग्स में डालते हैं. तो हम जो प्रोनाउंस करते हैं ट्राउजर, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ट्राउजर वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स वर्ड होता है. ट्राउजर्स क्यों होता है, क्योंकि उसके टू लेग्स में हम इसको डालते हैं, अपने एक लेग में हम कभी नहीं डालते. ठीक है, तो हिज ट्राउजर्स हैव टोन आएगा यहाँ पर. ठीक है, द सीजर्स आर शार्प, जो सीजर है वो शार्प है, तो सीजर्स आर शार्प. सीजर के साथ कभी इज नहीं लगाते, हम कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि सीजर्स के टू पीस होते हैं और वो टू पीस मिलकर के किसी भी क्लॉथ को, किसी भी पेपर को कट करते हैं. तो सीजर्स के साथ हमेशा आर आता है, और इसको बोलते हैं ट्राउजर्स. कभी भी ट्राउजर नहीं बोलते, ट्राउजर्स बोलते हैं हमेशा. हिज ट्राउजर्स हैव टोन. ये ट्राउजर पर्सन तो एक ही डालता है, एक ही पर्सन डालता है टू लेग्स के अंदर, बट इसको हम बोलेंगे ट्राउजर्स ही. ठीक है, अब पेयर ऑफ सीजर्स, जब यहाँ पर पेयर आ जाता है, पेयर ऑफ सीजर्स आ गया, तो यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगी. यहाँ पर क्यों, जहां पर भी अ पेयर ऑफ आता है वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है. सो मीन्स टू से अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज बॉट, अ पेयर ऑफ शूज वाज लॉस्ट. ठीक है, अ पेयर ऑफ टोंग्स वाज बॉट. तो जहां पर भी अ पेयर ऑफ आ गया, अ पेयर ऑफ के आते ही आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी. फिर चाहे सीजर्स लिखा हो, चाहे शूज लिखा हो, चाहे फिर ट्राउजर्स लिखा हो यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि वो अ पेयर आएगा. जैसे आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स. ठीक है, तो इसके साथ आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. यहाँ पर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टोन, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टोन आ जाएगा फिर यहाँ पर. क्यों, क्योंकि हमने अ पेयर ऑफ यहाँ पे यूज कर दिया. द नेक्स्ट रूल इज द when preposition comes between two noun. देखो अगर टू नाउन हमारे पास होते हैं और हम उनके बीच में प्रोनाउन यूज करते हैं, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर. देखिए लाइक बॉय आफ्टर बॉय. अब यहाँ पर टू प्रोनाउन कौन से, बॉय और बॉय, दोनों प्रोनाउन, सॉरी दोनों के दोनों हमें नाउन गिवन है. तो जब भी हमें या तो दो नाउन गिवन है तो या फिर प्रोनाउन गिवन है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, बीच में अगर हमारा प्रेपोजिशन आए, देखो दो नाउन के बीच में, टू नाउन्स के बीच में अगर हमारा प्रेपोजिशन आ गया, तो मीन्स हमारी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आते हैं. जैसे बॉय आफ्टर बॉय, कि एक के बाद एक लड़का हैज एंटर्ड माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में एंटर हुए. ठीक है, मेरे ऑफिस में एंटर्ड कौन हो चुके थे, एक के बाद एक लड़का. पेज आफ्टर पेज, एक के बाद एक पेज वॉज टर्न, मुड़ता चला गया, मीन्स मुड़ गया था, मीन्स मुड़ गया, क्या हुआ, पेज आफ्टर पेज, एक के बाद एक पेज. यहाँ पर कभी ना पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखते, दैट इज रॉन्ग. यहाँ पर हमेशा सिंगुलर ही आता है. जैसे पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस कभी भी नहीं होता. ठीक है, सो पेज आफ्टर पेज वॉज टर्न. नेक्स्ट इज पेन आफ्टर पेन हैज बोट, कि एक के बाद एक, इसकी सेंस क्या होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक बॉय, एक के बाद एक पेज, एक के बाद एक पेन.
तो क्या किया गया, बोट किया गया, खरीदा गया, टर्न हुआ, मुड़ गया, या फिर एंटर हुआ ऑफिस में। इनके साथ आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट और प्रेजेंट। अगर यहाँ पर इज आएगा तो प्रेजेंट आ जाएगा, वॉज है तो पास्ट आ गया, हैज है तो प्रेजेंट आ गया, हैड होगा तो पास्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको यूज करना है सिंगुलर की फॉर्म में। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स। अगर टू नाउन का कॉम्बिनेशन आ जाता है, अगर टू नाउन हमारे पास आते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वो हमें एक नाउन शो करता है। देखो अगर मान लो टू नाउन है, वो मिलकर हमें किसी दूसरे नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी ये दोनों नाउन है, राइस भी नाउन है, करी भी नाउन है, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा थर्ड नाउन बनता है, टू नाउन की हेल्प से जब हमारा थर्ड नाउन बनता है, तो वो हमारे उसके लिए हम इज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज हेल्दी फूड। तो ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बनाते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्दी फूड है थर्ड हमारा नाउन आ जाता है, और इससे पहले आप हमेशा क्या लगाओगे, इज लगाओ, क्योंकि इन दोनों का कलेक्शन हमारा क्या बना रहा है, थर्ड नाउन बना रहा है। और थर्ड नाउन बनते ही हमारा क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, bread and butter is a healthy food. So don't confuse whether two are given, but you will use one, that is singular and is. Next rule one is there, when two subjects are joined by and। अगर two subjects को and से join कर दे, जैसे my friend and my mother। अब my friend भी अलग है और उसकी मदर भी अलग है, तो two हो गए, यहाँ पर friend अलग है, mother अलग है, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया तो आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे आर्टिकल का बहुत वैल्यू होती है यहाँ पे आर्टिकल की, कि आर्टिकल देखो अगर यहाँ पे द कैप्टन लगा है और एंड के बाद आर्टिकल नहीं लगा, इट मीन्स द कैप्टन एंड कोच एक ही पर्सन है। कहने का मीन्स कि अगर यहाँ पर एक जगह आर्टिकल लगा है, जैसे द कैप्टन या द सुपरवाइजर आपने लिख दिया, एंड और एंड के बाद आर्टिकल द नहीं लगाया, इट मीन्स कोच और कैप्टन एक ही पर्सन है, और एक पर्सन के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर का यूज करोगे, सिंगुलर जो वर्ब है उसका यूज करोगे। अगर यहाँ पर मैं कहूंगी द कैप्टन एंड द कोच, अब मैंने द के साथ कैप्टन तो पहले लगा दिया, अब मैंने कोच के साथ भी द लगा दिया, मीन्स अब जो कैप्टन है वो अलग पर्सन है और जो कोच है वो अलग पर्सन है। अब जब दो अलग अलग पर्सन हो गए तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल होते ही आपका क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, जो कि होते हैं प्लूरल वर्ब हैव यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, हैज, क्योंकि द कैप्टन और कोच एक ही पर्सन था तो हमने हैज लगाया। बट यहाँ पे अगर द कैप्टन द कोच यहाँ पे गिवन है, मीन्स टू से दिस इज बोथ ऑफ दे आर डिफरेंट नाउ, सो यू हैव टू यूज हैव हियर, राइट। नेक्स्ट इज अ हॉर्स एंड अ कैरेज। अब देखो एक हॉर्स है और एक कैरेज है, तो दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, और जब दो होते हैं तो टू के लिए हम हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं, रेडी फॉर अस, कि एक कैरेज और एक हॉर्स जो है हमारे लिए क्या था, रेडी थे। ठीक है, कैरेज क्या होता है कि जिसमें आप बैठ के, जैसे बग्गी टाइप होता है, हॉर्स और जो बग्गी होती है उसमें बैठ के आप आते हो, दैट इज नोन एज हॉर्स एंड कैरेज। तो हॉर्स अलग है, कैरेज अलग। वो अलग अलग क्यों है, देखो हॉर्स के पहले हमने आर्टिकल लगाया, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे ए एन और द नहीं लिखा हो, इट मीन्स तो दोनों के दोनों वो एक ही होंगे, राइट। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इज देयर, आइडेंटिफाई करना है कि देखो यहाँ पर एवरीवन लगा हो, ईच लगा हो, ईच वन हो, समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है, एनीवन है, एनीबडी है। ठीक है, जैसे मैंने वन और एनीवन एनीबडी पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि नोबडी और नो वन में क्या डिफरेंस है, एनीबडी एनीबडी और एनीवन में क्या डिफरेंस है, समवन और समबडी में क्या डिफरेंस है, तो इसकी प्रॉपर वीडियो है आपके ग्रामर सेक्शन में, जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके और ग्रामर में आप इस वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एवरीवन एंड एवरीबॉडी, समवन एंड समबडी, नो वन एंड नोबडी, एनीवन एंड एनीबडी, इस पे एक प्रॉपर आपकी वीडियो है। नाउ एवरीवन इज सेल्फिश। अब देखो जहां पे भी आपके ये सारे प्रोनाउंस आते हैं जो भी आपको गिवन है, नोबडी, समबडी, एनीबडी, तो इनमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। अब कभी भी प्लूरल नहीं लगा, जैसे एवरीवन, एवरीवन क्या है, हर दूसरा पर्सन। अब यहाँ पर क्या आ गया, इज सेल्फिश आएगा, एवरीवन के साथ इज आ गया, नोबडी के साथ हैज आ गया, समवन के साथ हैज आ गया, मीन्स उसे जहां पे ये वर्ड्स आते हैं उसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। नेक्स्ट इज देयर कि वी डू नॉट यूज आर इन दिस सेंटेंसेस, आर कभी भी हम इनमें नहीं लगाते। एवरीवन आर सेल्फिश, बिल्कुल रॉन्ग है। नोबडी हैव सीन इट, रॉन्ग है। ठीक है, someone have done it, तो have भी नहीं आएगा, that is also wrong। तो यहाँ पर has आएगा, यहाँ पे has आएगा, यहाँ पे is आएगा।
अब ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज डन होमवर्क, तो यहाँ पर ईच आ गया, यहाँ पे भी ईच है, यहाँ पे भी ईच है, मीन्स दोनों के लिए फिर भी आपने क्या लगाना, हैज ही लगाना है। क्यों लगाना, क्योंकि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे ईच के साथ हमने देखो जिसे मैंने कहा था यहाँ पे ईच वन एवरी वन जो है उनके साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा हैज ही लगाना है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students has completed work, so यहाँ पर क्या आ गया, each आ गया, each कहते हैं आपको has का यूज करना है। नेक्स्ट रूल इज when the percentage, देखो जब आपको परसेंटेज गिवन होती है, जैसे 40 of every 100 children are malnourished, malnourished होता है ill mannered, ill nourished मीन्स जो कुपोषित होते हैं जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं malnourished मीन्स जो कि अच्छे से खाना नहीं खाते, अनहेल्दी जिनको आप बोलते हो, ठीक है। तो 40 ऑफ एवरी 100 मीन्स 100 में से 40 निकाला ना, परसेंटेज निकाल दी कि 100 में से जो 40 स्टूडेंट है वो एवरी जो चिल्ड्रन है वो मॉल नरिश्ड है, तो इस तरह से आप आर लगाएंगे, क्योंकि 100 चिल्ड्रन में से 40 है तो वो क्या होगा, आपका आर आएगा। यहाँ पर ये प्लूरल आएगा, ध्यान रखना कि जब आपको परसेंटेज निकाल के दे दे कि 100 में से 60, 100 में से 80 चिल्ड्रन जो वो क्या है, और मॉल नरिश्ड है मीन्स वो क्या है, अनहेल्दी है, तो प्लूरल आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल 5, अगर आपको ईदर और नीदर और नोर, ईदर और नीदर नोर अगर आपको गिवन है तब आपका क्या होगा, नीदर यू नोर आई एम टेकिंग टी। अब देखो यहाँ पे जब भी आपका नीदर और नोर आता है तो इसके जस्ट बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना, नीदर यू नोर आई। अब आपने पहले वाला कुछ भी नहीं देखना, नोर के बाद जो भी है या और के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। जैसे आई के साथ एम आता है तो आई एम टेकिंग टी आएगा, शी के साथ इज आता है तो शी इज टेकिंग टी आएगा, ठीक है, मीन्स ना तो वो ना मैं चाय लेता हूँ। इधर द बॉयज और शी इज टेकिंग टी, कि या तो बॉयज चाय लेंगे और या फिर वो चाय लेगी, तो मीन्स यहाँ पे कहने का कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी या और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट रूल इज देयर कि अगर हमारा यही आता है, जैसे अलोंग विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, एज वेल एज आ गया, अकम्पनीड बाय आ गया, अगर ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं और कंबाइन करते टू सब्जेक्ट्स को तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे रमन एज वेल एज द गर्ल्स, तो यहाँ पे जब एज वेल एज आ गया, अलोंग विद आ गया, ठीक है, और विद यहाँ पे आ गया, तो इन वर्ड्स के साथ, इनके साथ आपको जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये वर्ब लगाने, जैसे रमन के साथ क्या आना चाहिए, इज, तो रमन इज आएगा, या रमन हैज आएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, की टेंस में आपका क्या आता है, परफेक्ट की सेंस दे रहा है या आपकी प्रेजेंट की टेंस सेंस दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, रमन इज आ जाएगा या रमन हैज आएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। फिर किरण, किरण के साथ सिंगुलर है तो किरण के साथ आप यहाँ पर हैज कम, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैज कम आएगा। फिर आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम लगाते हो, तो आई विद माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू गोवा, देखो देखने में बिल्कुल रॉन्ग लगता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीटेट एंड एस्टेट, सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल आस्क इन द सीटेट एंड एस्टेट आल्सो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, लाइक रमन एज वेल एज द गर्ल्स इज टेकिंग रेस्ट, देखने में बिल्कुल रॉन्ग लगते हैं बट ग्रामेटिकली दीज आर करेक्ट, लाइक किरण अलोंग विद ब्रदर, अब ब्रदर्स को देख के आप यहाँ पर हैव लगा देते हो, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको जहाँ पर एज वेल एज अलोंग विद लगा हुआ है या फिर विद आ जाता है तो उसके साथ आपको जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी होती है, कीप इट इन माइंड, एंड दिस टाइप विल ऑलवेज कम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देयर, राइट। नेक्स्ट इज ऑल, ऑल के साथ क्या लगेगा, ऑल इज आ जाता है आपका, जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, जो भी चमकती हुई चीजें वो सारी सोना नहीं होती, ठीक है, मीन्स यूज ऑफ थिंग्स दे सिंगुलर वर्ब, बट पर्सन के लिए अगर आप यूज करेंगे तो यहीं पर आपका प्लूरल हो जाएगा। देखो अगर आप थिंग्स के लिए यूज करोगे ऑल का, जैसे गोल्ड आपकी थिंग होती है, अगर थिंग के लिए यूज किया तो इज आ जाएगा, और अगर ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हुआ तो आपका प्लूरल आएगा, जैसे कि गोन, कौन जा सकता है, ह्यूमन बीइंग तो जा सकता है, कोई पर्सन ही तो जाएगा, तो गोन किसके लिए आया, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हैव लगाया, जैसे ऑल हैव गोन अवे, कि हर कोई वहां से जा चुका था, सभी वहां से जा चुके हैं, सॉरी, कि सभी वहां से जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव गोन आएगा, यहाँ पर ऑल हैज गोन नहीं आएगा, ठीक है, ऑल हैव गोन आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे गोन जो वर्ड है वो ह्यूमन बीइंग को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर जो थिंग है, अब देखो ऑल इज नॉट
all is not gold that glitter, all is not gold that glitters, जो चमकती है वो सारी चीज सोना नहीं होती, मीन्स सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो इट मीन्स गोल्ड क्या आ गया आपका, कोई ना कोई धातु का नेम आ गया, कोई मटेरियल का नेम आ गया। फॉर दैट यू हैव टू यूज इज देयर, थिंग्स के लिए इज आएगा ऑल के साथ, और अगर आपका ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ हैव आएगा, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 7, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखो अब यहाँ पे अगर अ नंबर ऑफ आ जाता है तो उसके साथ आप लगाओगे प्लूरल, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, राइट। अगर द नंबर ऑफ आता है यहाँ पे, द नंबर ऑफ बुक्स इज सेलिंग, तो इसके साथ आपको सिंगुलर लगाना है, या फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो अगर द नंबर ऑफ आ जाता है तो आपको लगाना है सिंगुलर, और अगर अ नंबर ऑफ आ गया तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। नेक्स्ट इज देयर यूनिट, अगर आप मेजरमेंट करते हो, किसी चीज को मापते हो, तो मापते हुए देखो कैसे आपको करना है कि अगर जैसे ये सम आ गया, जैसे आपको एक यूनिट प्रेजेंट कर, जैसे यूनिट क्या है, यूनिट क्या है 50 रुपीज। अब 50 रुपीज आपको एक यूनिट दिखा दी इसने, जो ये अगर यूनिट दिखाता है तो सिंगुलर आएगा, जैसे 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट टू मी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 50 रुपीज का अमाउंट, ठीक है। तो 50 रुपीज जो है यहाँ पे क्या है, एक सम ऑफ अमाउंट है, तो उसके लिए आपका इज आएगा। अगर आता है कि 10 किलोमीटर, अब देखो 10 किलोमीटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे 10 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पर आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स कहने का अगर ये प्लूरल आ गया तो ये सिंगुलर आएगा, अगर ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल आ गया। अब जैसे यहाँ पर एस लग गया, प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा कि 10 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जब यहाँ पर एस लगता है ना तो ये एक यूनिट को शो करता है, और यूनिट के शो होते यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाती है। यहाँ पर जैसे यूनिट शो नहीं हो रहा, 10 मतलब 1 से लेके 10 तक आपके नंबर से शो हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पर, कि 1 भी सिंगुलर, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे सिंगुलर आ गए आपके, तो इनके साथ आपका क्या आएगा, फिर प्लूरल आ जाएगा। अगर 50 रुपीज एस लग गया, जब जहाँ पे आपका प्लूरल लग गया, एस लग गया, तो वहां पे आपकी सिंगुलर जो है वो अब यहाँ पे आ जाएगी। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट स्लाइड, दैट इज व्हेन एनी ऑफ फ्यू, जैसे अगर इनमें से कोई भी फ्यू आ गया, मैनी आ गया, सेवरल आ गया, अ फ्यू, द फ्यू आ जाता है, बोथ आ जाता है, ऑल आ जाता है, या सम आता है, तो अगर ये काउंटेबल नाउन की सेंस में आते हैं तो आपका इज आता है, ठीक है। तो आपकी जो वर्ब है वो इज क्या, सॉरी उसकी जो वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कैसे आएगी काउंटेबल के साथ, सम मैन आर, अब देखो सम मैन MEN है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, ठीक है, तो क्या आ गया आपका प्लूरल ही यहाँ पर भी आ गया। अगर सेवरल बुक्स हैं, एस आ गया, तो यहाँ पर भी वर आ गया। a few women, a few women अगर आ गया आपका, तो यहाँ पर देखो प्लूरल है women, तो इसके साथ भी आपका वर मीन्स आपका प्लूरल फॉर्म आती है। मैनी ऑफ द बॉयज, अगर मैनी ऑफ द बॉयज, बॉयज आ गया, एस लग गया, मीन्स यहाँ पर हैव आएगा। कहने का मीन्स कि अगर आपका फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल और सम, इनके साथ अगर काउंटेबल थिंग्स आ जाती हैं और वो भी प्लूरल फॉर्म में, काउंटेबल आ जाते हैं, मैन प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है, विमेन प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, मैंगोज प्लूरल है, तो इन सब के साथ वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगानी है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज देयर, इफ सम इज यूज, अगर सम यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लग जाएगा। जैसे सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, ठीक है, तो सम मिल्क, मिल्क क्या है अनकाउंटेबल, सम इंक है तो इंक के साथ भी इज आ जाएगा, ठीक है, सम वाटर है उसके साथ भी इज आ जाएगा, सम मिल्क, सम वाटर, सम इंक, सम जूस, तो ये सारे अनकाउंटेबल है, इनके साथ जो वो सिंगुलर आ जाएगी। सम इंक वॉज लेफ्ट इन द बोट, इंक पोट, ये भी सिंगुलर आ गया। अ लिटिल जूस वॉज लेफ्ट, अ लिटिल जूस है, मिस बहुत थोड़ा है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए आपका क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। सो ऑल दीज वर योर about the subject verb and agreement. I guess everybody will get this one, and thank you so much for watching the video. Have a wonderful day.